الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آئیے حضرات، اپنے عادت کے مطابق گفتگو کی آغاز کرنے سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت، محبت، عشق، الفت سے عشق کے تھالی میں حضور کی بارگاہ میں پڑھے بوجہ بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور میں قادری ہوں، آپ بھی قادری ہیں، ہم سب سبحان اللہ. دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے. حضرات، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر. اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں رضائے الہی حاصل ہوتی ہے. آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ یہ محفل سجی ہوئی ہے حضور غوث اعظم کے نام پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ چاند جو ہے 11 ہے، چاند 11 شریف کا مہینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاند کا 11 شریف کا مہینہ، اور اس محفل میں ہم کچھ لوگ شرکت ہیں. سبحان اللہ. آپ کو بتاتا ہوا چلو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا محفل وہی سجاتا ہے جو میں چاہتا ہوں. وہ کرنے سے پہلے میری بارگاہ میں اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ محفل کو سجانے سے پہلے میری بارگاہ میں اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے. جب میں چاہتا ہوں تب وہ میری محفل کو سجاتا ہے اور رچاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو حضور غوث اعظم کی محفل کو سجا نہیں سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ حضور غوث اعظم نہیں چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم نہیں چاہ رہے ہیں. حضور غوث اعظم جب چاہتے ہیں تب وہی لوگ ان کی محفل کو سجاتے بھی ہیں، رچاتے بھی ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آج ہم لوگ غلامان غوث اعظم ہیں. آج ہم ذکر غوث اعظم کا ہی کریں گے. سبحان اللہ. غوث اعظم عبد القادر جیلانی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، لیکن ذکر میرے سرکار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو بولنا پڑے گا، اس لیے کہ تقریر کی نہیں جاتی ہے، کرائی جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کو کچھ دیر تک سننا ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی بات بتاؤں جو آپ کے لیے نیو ہو، نیا ہو. میری زبان حال سے آپ کافی واقعات حضور غوث اعظم کے شان میں ان کے متعلق سنے ہو، لیکن آج میری کوشش ہے کہ میں ایسی بات بتاؤں جو آپ کے لیے نیو ہو، نیا ہو. ابھی حضور غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، پیدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ مادر شکم میں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن مادرجات ولی ہے اللہ، لیکن مادرجات ولی حضور غوث اعظم ہے. ابھی حضور غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، لیکن تذکرہ میرے سرکار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث شریف میں ذکر ہے کہ حجرہ فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ کے گھر میں 5 پنجتن ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 5 پنجتن ہے کون؟ علی، فاطمہ، حسن و حسین میرے سرکار. سبحان اللہ. 5 پنجتن ہے حجرہ فاطمہ میں، یعنی فاطمہ کے گھر پہ میرے سرکار تشریف فرما ہے. میرے سرکار جب پہنچنے کے بعد حسن کو سونگنے بھی لگے، چومنے بھی لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین کو نہیں، حسن کو محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے، عشق کرنے لگے، الفت کرنے لگے. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی کہ ہر دن تو حسین سے محبت کرتے ہیں جا رہے، اس لیے کہ ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. چھوٹے بچے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ پیارا ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، اور لوگ اس سے بے انتہا محبت بھی کرتے ہیں.
लेकिन हर रोज मेरे आका हुसैन को प्यार करते थे, हुसैन से इश्क करते थे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उल्टा हो रहा है। मेरे आका हसन को मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इतने में फातिमा दिल में ये सोचने लगी कि ये अल्लाह हर रोज इमाम हुसैन से बेइंतहा मेरे अब्बू मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज हसन से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं। इतना सोचना था। मेरे नबी फरमाते फातिमा सोचने की कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह, सोचने की कोई बात नहीं है। मेरे पास अभी जिब्रील अमी आए थे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास अभी जिब्रील अमी आए थे और मुझे जिब्रील ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम है और वो पैगाम को जिब्रील लेकर आया है, सुभान अल्लाह, और आपकी बरगाह में आया है या रसूल अल्लाह। पैगाम ये है कि इमाम हसन के नस्ल में एक लड़का पैदा होगा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन के औलाद में से एक औलाद होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम उसका अब्दुल कादिर होगा। या रसूल अल्लाह, जिस तरह नबियों में आपकी शान आला और निराली है, उसी तरह वलियों में उनका नाम और रुतबा मकाम बुलंद होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते फातिमा इसलिए मैं इसे चूम रहा हूँ, इसलिए मैं इसे मोहब्बत कर रहा हूँ कि इसकी नस्ल में, इसकी औलाद में से एक औलाद एक पैदा होगा जो मेरा बेटा भी होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। जिस तरह नबियों में मैं ताजदार हूँ, उसी तरह वलियों में वो तमाम वलियों का सरदार हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन बशारत दे रहे हैं? मेरे मुस्तफा बशारत, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? मेरे सरकार कह रहे हैं। यहाँ तक महदूद नहीं है, हज़रत जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली हैं, यानी हुजूर गौसे आजम से 5 या 6 पुश्त से पहले हुजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनकी महफिल में बैठे हुए हैं और अपने गुलामों को तज़किरा कर रहे हैं। इतने में उनकी लब कुशाई हुई। फरमाते हैं लोगों, मेरे जाने के बाद 5 पुश्त के बाद 6 पुश्त में जो आएगा नाम उसका अब्दुल कादिर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए नहीं है, तज़किरा पहले से हो रहा है। सरकार गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, लेकिन तज़किरा पहले हो रहा है, जिक्र पहले हो रहा है। अपनी महफिल में फरमाते हैं कि 5 या 6 पुश्त के बाद एक शख्स पैदा होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा, और बगदाद के जामा मस्जिद में मेंबर पर खड़े होकर ये कहेगा कदमी हाजा अला रतीबती कुल्ली वलील्लाह, यानी मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी महफिल में तज़किरा कर रहे हैं। वो तो बाद में आएंगे, फिर कहेंगे, लेकिन जुनैद पहले से अपना सर झुकाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वो बाद में आएंगे, फिर ऐलान करेंगे, मैं अभी से मैं अपना सर झुका लेता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बताता हुआ चलो, हुजूर के जमाने में आपने आशिक रसूल का नाम सुना होगा, हज़रत उवैस करनी, बहुत मशहूर है। अल्लाह अल्लाह, ये ताबाई है, साहबी नहीं है, बिन देखे हुजूर से इश्क, बिन देखे हुजूर से मोहब्बत करते थे। लेकिन माँ की मोहब्बत इतनी गालिब आ गई कि सरकार का चेहरा देख नहीं पाए। आए थे मदीना लेकिन देख नहीं पाए, वापस हो गए। लेकिन मेरे नबी ने उनके लिए तोहफा एक जुब्बा शरीफ भेजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुब्बा लेकर हजरत उमर को और मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा को लेकर भेजे, सुभान अल्लाह। जाने के बाद ये मेरे नबी फरमाते हैं कि जाओ मेरे उवैस को दे आओ, मेरा सलाम उसे कहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसको मेरे सरकार सलाम पेश करे वो आम जात नहीं है, बल्कि अफजल जात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत मौलाए कायनात उमर फारूक जाते हैं उवैस करनी, यानी मदीना से करने का जो फैसला 500 किलोमीटर से जाए, वहां जब पहुंचे के बाद उनकी बारगाह में पहुंचने सलाम पेश किए और कहने लगे कि मेरे सरकार का ये तोहफा ये लें, सुभान अल्लाह। है तो बस कहीं लेने के बाद मेरे नबी रुखसत करने से पहले एक जुमला फरमाए थे, उमर जाकर कहना उवैस से कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, सुभान अल्लाह, सुभान, मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, ताकि उवैस करनी के दुआ से अल्लाह मेरी उम्मत को
जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी जैसा ही ये बात उमर फारूक ने उवैस करनी को कहा तो हजरत उवैस करनी कहते हैं उमर अली तुम तो हर वक्त मुस्तफा के साथ, सुभान अल्लाह, हर वक्त मुस्तफा के साथ बैठते हो तो मुस्तफा के साथ, उठते हो तो मुस्तफा के साथ, खाते हो तो मुस्तफा के साथ, हर वक्त मुस्तफा के साथ है। लेकिन उवैस का एक ख्वाहिश, एक सवाल है, बताओ मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भुए मुबारक कैसे? सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि उवैस में बता नहीं पाऊंगा कि किस तरह है, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत उवैस कहते हैं उमर सुनो मैं बताता हूँ, सुभान अल्लाह। देखे नहीं है सरकार को, देखे नहीं है, बोलते हैं जब करीब में रहते हैं तो जो भुए हैं वो अलग हैं, भुए जो अलग हैं, लेकिन जब दूर से देखा जाता है कि भुए मुबारक जो है लगे हुए हैं, इतना कहना था। अली फरमाते हैं उवैस तूने सच ही कहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तूने सच ही कहा है। इतने में उमर फरमाते हैं कि हुजूर ने ये पैगाम भेजा है कि तुम उम्मती मोहम्मदिया के लिए दुआ करो, यानी हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करो। सजदे में सर रख दिया और कहने लगे मौला मेरे हुजूर की उम्मत को बख्श दे। गैब से आवाज आई उवैस आधी उम्मत को तेरी दुआ से बख्शूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आधी उम्मत को तेरी दुआ से बख्शूंगा। इतना कहना था उवैस करनी पूछते मौला फिर आधी उम्मत की बात है, आधी उम्मत, इतना कहना था। गैब से आवाज आई उवैस आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शूंगा और आधी उम्मत अब्दुल कादिर की दुआ से बख्शूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हुजूर गौसे दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, लेकिन तज़किरा हो रहा है पहले से। आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शूंगा और आधी उम्मत अब्दुल कादिर के दुआ से बख्शूंगा। ऐसे उवैस करनी कहते मौला ये अब्दुल कादिर है कौन? सुभान अल्लाह, मौला ये अब्दुल कादिर है कौन? इतना कहना था। गैब से आवाज आई ये मेरे महबूब का बेटे के बेटे के बेटे अब्दुल कादिर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कई पुश्त के बाद बेटे पैदा होंगे, नाम उसका अब्दुल कादिर है। और जब वो पैदा होगा, हो जाने के बाद रब ये पैगाम भेज रहा है तो वो ऐलान करेगा तमाम बोलियों के गर्दन में मेरा कदम है। इतना कहना था। वैसे करनी कहते हैं मौला वो आएंगे बाद में, मैं पहले आ चुका हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आएंगे बाद में, मैं पहले आ चुका हूँ। मौला मैं अभी से अपना सर झुकाता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अभी से मैं अपना सर झुकाता हूँ। अब सोचिए ऐसे उवैस करनी एक अल्लाह के वली हैं, पहले से सर झुका रहे हैं। हुजूर गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, लेकिन तज़किरा पहले से हो रहा है। ये मेरा गौस का शान है, ये मेरी गौस का मकाम है, ये गौस आज़म की शान है। आपको बताता हुआ चलो हुजूर गौस आज़म के नाम से मुसीबतें चलती है, हुजूर गौस आज़म के नाम से जिंदगी मिल रही है, हुजूर गौस आज़म के नाम से हम बुलंदी के उरूज पे पहुंच रहे हैं। हुजूर गौस आज़म के नाम के सदक़े से लोगों को जिंदगी मिल रही है। वो कैसे मिल रहे हैं मैं आपको बताता हुआ चलो। हुजूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम में इतनी तासीर है, जो बंदा खुलूस के साथ इश्क के साथ जब ये नाम लेता है, अल्लाह इस नाम की बरकत से जो है परेशानी को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अब्दुल कादिर, कादिर का मतलब कुदरत रखने वाला। एक लफ्ज में आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यारा बात बता रहा हूँ। अब्दुल कादिर, कादिर खुदा का नाम है। अब इसलिए लगा रहा हूँ कि अब हो जाने से ताकि कादिर का बंदा, तो अब्दुल कादिर जो है कुदरत रखने वाला। तो हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं कि मेरा नाम कादिर रखने वाला कोई है ही नहीं, बल्कि मेरा खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादिर मेरा रखने वाला नाम, बल्कि मेरा खुदा है। नाम पहले अब मैंने लगा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने वो ताकतें, वो कुदरत बख्शी है कि मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, सुभान अल्लाह। मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। आपको बताता हुआ चलूं, एक मर्तबा हुजूर गौसे आज़म एक शख्स के पास, एक मुरीद मुखलिसीन था, बहुत प्यारा था, दावत को कबूल कर लिए, दावत के लिए गए। दावत खाने के बाद दस्तरखान बिछाए गए। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने जब हाथ धोने के लिए मुरीद ने जब पानी ढाला तो हुजूर गौसे आज़म हाथ धो रहे। हाथ जब धुल रहे थे तो एक लोटा, दो लोटा, कई लोटा पानी खत्म हो गया, हाथ धो रही है। मुरीद परेशान।
कि या अल्लाह हुजूर गौसे आजम जब भी हाथ धोते थे इतनी ताखीर नहीं करते थे, कई लोटे से हाथ धो चुके हैं। हाथ धोने के बाद जब हुजूर गौसे आजम मुकम्मल हाथ धोने के बाद जाके बैठ गए तो मुरीद कहने लगा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, एक बात पूछना चाहते हैं ना, बताओ ना हुजूर। आप चाहे तो थोड़े से पानी में हाथ जो है धुला जा सकता है, लेकिन आपने कई लोटे से हाथ धोआ। हुजूर गौसे आजम एक जुमला फरमाते हैं, क्या ही प्यारा जुमला। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जिसका मैं मेहमान बनूं और वो जहन्नमी में जाए, सुभान अल्लाह, जिसका मैं मेहमान बनूं वो जहन्नम जाए, ये मेरी रहमत को गवारा दे, सुभान अल्लाह। हुजूर बात क्या है ना, जब ये शख्स मेरा हाथ धुला रहा था इसकी पेशानी में जहन्नमी लिखा हुआ, अल्लाह अल्लाह, इसके पेशानी में मैं पढ़ा, इसकी तकदीर को पढ़ रहा था कि तकदीर में जहन्नम लिखा हुआ था। तो जब ये लोटा से पानी ढाल रहा था मैं रब से फरियाद कर रहा था, मौला मैं जिसका मेहमान बना वो जहन्नम में जाए, ये अब्दुल कादिर को गवारा नहीं है, सुभान अल्लाह, ये अब्दुल कादिर को गवारा नहीं है। जब तक इसके तकदीर में जहन्नम लिखी हुई है तो जब तक जन्नती नहीं लिख देगा, तो जब तक जन्नती ना लिखेगा तब तक मैं हाथ धोता रहूंगा, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने उसके तकदीर को काट कर रद्द करके जन्नती लिखा तो हुजूर गौसे आजम रुक गए, सुभान अल्लाह। आप सोचो हुजूर गौसे आजम की शान, अब देखें कि नाम की बरकत से, उनकी दुआ की बरकत से एक शख्स जो उनका मुरीद था तकदीर में जहन्नम लिखा था, हुजूर गौसे आजम ने एक निगाह करम डाल दिया, वो जन्नती हो गया, सुभान अल्लाह। उसी तरह हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के बारगाह में एक औरत आई, कई साल उसकी कोई औलाद नहीं, कोई बच्चे नहीं। आई उनके नाना जान हजरत आबू मूसा साले जंगी दोस्त, और ये हुजूर गौसे आजम के वालिद का नाम है। उनके नाना का नाम हजरत सोमाई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सोमाई रहमतुल्लाह अलैह, ये जो है उनके नाना है। तो उनके जो नाना जो थे, नाना बहुत पहुंची हुई हस्ती थे, वो भी एक अल्लाह के वली थे, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम के वालिद वो भी अल्लाह के वली हैं, हुजूर गौसे आजम की वालिदा वो भी एक वलिया है, हुजूर गौसे आजम के नाना वो भी एक अल्लाह के वली है, सुभान अल्लाह। बताने का मकसद है कि इमाम हसन बाप की तरफ से हसनी है, बाप की तरफ से हसनी है और माँ की तरफ से हसनी है, सुभान अल्लाह। यानी बाप भी सैयद, माँ भी सैयदा, सुभान अल्लाह। तब जाकर गौसे आजम पैदा होते हैं, तब जाकर गौसे आजम पैदा होते हैं। तो उनके नाना के पास एक औरत आई फरियाद लेकर, कहने लगी हुजूर मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, आप दुआ कर दें ताकि मेरी औलाद हो जाए। तो उनके नाना हजरत अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाह अलैह उसकी तकदीर को देखते हैं कि उसके तकदीर में कोई औलाद नहीं, उसकी तकदीर में कोई औलाद नहीं। अब उनके नाना फरमाते हैं, ए औरत तेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं, तेरे औलाद नहीं है, तू चली। अब वो जो है जाने लगी तो आंगन में एक 7 साल का बच्चा खेल रहा था, हाय हाय 7 साल के बच्चा खेल रहा था। उन्होंने देखा उस बच्चे ने कि जा रही थी मुस्कुरा कर आ रही है और उठी हुई, फौरन कहते हैं औरत क्या बात है, जा रही थी खुशी खुशी आ रही है, चेहरे पे झुरमुराहट, मायूसी, खामोशी। इतने में वो कहती है तू बच्चा है, तू क्या समझेगा, अब बोल के तो देख, हाय 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 बोल के तो देख। तो औरत कहती है क्या करूं, ऐ बच्चे मेरे कई साल हो चुके हैं, कोई औलाद नहीं, और ये उम्मीद लेकर आई थी कि ताकि हजरत अब्दुल्ला सुमा रहमतुल्लाह अलैह के खानका से कोई महरूम नहीं जाता है, ताकि मैं इनसे दुआ कराऊं ताकि मेरी कोई औलाद हो जाए। तो इन्होंने जब मेरी तकदीर को देखा तो मेरी तकदीर में कोई औलाद ही नहीं है। तो उस 5-7 साल का बच्चा ने कहा कि तुम जिसकी बारगाह से आए हो उसी बारगाह के पास जाओ, है ना, जहां से आए फिर वहीं जाओ ना। वो तो इनकार कर दिए हैं ना, अगर तकदीर में लिखी रही थी तो मैं आती क्यों, हाय 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 क्या प्यारा जवाब दे रहे हैं। तकदीर में अगर लिखी रहती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती, तकदीर में नहीं है तो इसलिए आ रही हूँ, सुभान अल्लाह, तकदीर में नहीं है तो इसलिए आ रही हूँ। इतना कहना था। वो औरत के दिल में अरमान जगे, वो औरत फौरन पलटी, फिर अब्दुल्ला सोम रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिर हुई, यानी कि हुजूर मैं तो ये जानती हूँ कि मेरी तकदीर में नहीं है,
आप तो एक अल्लाह के वली हैं, अब जब तकदीर में नहीं है, मुझे ये पता है, आप तकदीर बना दीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने वो कुव्वतें, अल्लाह ने वो ताकतें अल्लाह के वली को दी, आप करम फरमाए। न तेरी तकदीर में कोई औलाद है तो चली जा, ना मुझे पता है मेरी तकदीर में नहीं है, इसलिए तो आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, इसलिए तो आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। इतना कहना था। दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद 1 साल के अंदर में एक लड़का पैदा हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दुआ करने के बाद 1 साल के बाद एक लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद वो बच्चा मर गया, कुछ दिन के बाद वो बच्चा मर गया। अब माँ का दिल, बेटा जब मर जाता है तो माँ के दिल में क्या बीतती होगी, आप तो बेहतर पता है आप लोगों को। हजरत अब्दुल्लाह सोमर रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफैल दुआ की बरकत से एक ही लड़का मिला, 1 साल में पैदा हुआ, कुछ दिन में मर गया। उसी बच्चे को लेकर हजरत अब्दुल्लाह सोमर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई। जैसे ही आ रही थी तो वही आंगन में 7 साल का बच्चा वही खेल रहा था। सुभान अल्लाह, 8 से 7 साल की उम्र शरीफ थी उनकी। कहने लगे तू तो पहले आ चुकी है, हाय हाय हाय, तू तो पहले आ चुकी है ना, पहले आ चुकी थी। अरे मेरे गोद में जो देख रहे हो ना, एक बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा मेरा बेटा है। अब्दुल्लाह सोमर रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफैल दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरे घर में चश्मो चराग को पैदा किया, एक लड़का दिया, लेकिन ये भी मर गया। अब मैं क्या करूं, इसलिए ये बच्चा को अब्दुल्लाह सोमर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेकर आई हूं। अब करूं तो क्या करूं। तो 7 साल 8 साल का बच्चे ने कहा कि कौन कहता है तेरा बच्चा मर गया, है? कौन कहता है तेरा बच्चा मर गया, तेरा बेटा तो जिंदा है, तू देख। इतना फरमाना था। तो अचानक उनके नाना घर से जब बाहर निकले तो देखते क्या है कि 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा जैसे ही कहा कि देख तेरे बेटे, तेरे गोद में तेरा बेटा जिंदा है, तो खुदा की कसम बेटा जिंदा हो चुका था। खुदा की कसम बेटा जिंदा हो चुका था। ये करामत को जब उनके नाना देखे तो एक लाठी थामे, अल्लाह अल्लाह, लाठी थाम कर बोले लगे अब्दुल कादिर रुक, तुझे मैं देखता हूं। इतने में जब जैसा ही घेर कर दौड़ा कर लेकर जा रहे थे, अचानक हुजूर गौसे आजम कब्रिस्तान में घुस गए और कहने लगे कब्र वालों, मेरा नाना मुझे घेर रहे हैं। इतना फरमाना था तुम लोग बचाओ। किताबों में मौरख लिखते हैं कि 300 कब्र सक हुई, फटी, 300 मुर्दा उठकर दौड़ने लगे। सुभान अल्लाह, 300 मुर्दा उठकर दौड़ने लगे। सिर्फ लफ्ज हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि कब्र वालों, मेरा नाना मुझे घेर रहे हैं, मेरा नाना मुझे मारेंगे, घेर रहे हैं, तुम मेरी मदद करो। तो 300 कब्र जितने मुरीद, जितने भी कब्र वहां थे, सब शक हुए, सब उठकर दौड़ने लगे। जब ये करामत उनके नाना देखे तो हैरत हो गई कि या अल्लाह, 7 साल 8 साल की उम्र है और बचपन में ये कमाल। फौरन अपने जो है नवासे को बुलाते हैं और कहते हैं जितने जितने लोगों को तुमने जिंदा किया फिर कहो अपनी कब्र में जाने के लिए, सुभान अल्लाह, फिर कहो कब्र में जाने के लिए। आप सोचें हुजूर गौसे आजम की शान क्या है। वो 5-6 साल 8 साल का बच्चा, वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी निगाह करम। आपको बताता हुआ चलूं, हुजूर गौसे आजम की, हुजूर गौसे आजम फरमाते कि मेरे मदरसा के जानिब से अगर कोई गुजर जाए, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, मदरसा से किसी गुजर जाए। अब सोचें, एक मर्तबा एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर, मैं ख्वाब में देखा कि मेरा बाप जहन्नम में है और काफी उसे तकलीफ हो रही है। हुजूर गौसे आजम एक जुमला फरमाते हैं, बता तेरा बाप कभी मेरी सोहबत में बैठा है, तेरा बाप मेरे मदरसा यानी मेरे खानका के करीब से गुजरा है ना? हुजूर मुझे पता नहीं। तो इतने में हुजूर गौसे आजम फरमाते अगर वो बैठा होगा तो जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, इतना फरमाना था। हुजूर गौसे फरमाते कि जा घर चला जा। जैसा ही घर गया, जाने से पहले हुजूर गौसे आजम हाथ उठाते हैं कि मौला अगर मेरी सोहबत में तो उसे जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी सोहबत में अगर गुजरा है, मेरी सोहबत में बैठा है और मेरे खानका से अगर ये गुजरा है, मेरे मदरसे से अगर गुजरा है मौला, तो इसकी जो भी खता उसे बख्श दे, उसे जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम ने जब दुआएं की, उसी रात उसका बेटा सोया तो ख्वाब में देखता क्या है कि बाप जन्नत में है। सुभान अल्लाह। तो ख्वाब में बाप बेटे से कहता है
اے میرے بیٹے عبدل قادر کے پاس جایا کرو، ان کی دعا لیا کرو. سبحان اللہ سبحان یہ شان حضور غوث اعظم کی ہے. میرے ملت کے نوجوان بزرگوں دوستوں، آپ قربان جائیں حضور غوث اعظم کی شان پہ. آپ کو بتاتا ہوا چلوں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شان عظمت کیا ہے. آپ کو بتاتا ہوا چلوں حضور غوث اعظم ہماری جو ہے مدد فرماتے ہیں. وہ کیسے مدد فرماتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک شخص تھا، خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ 100 عورتوں کے ساتھ جنا کیا. کتنے؟ 100 عورتوں کے ساتھ جنا کیا. اب صبح اٹھی تو یہ حیرت ہو گیا کہ اللہ میں یہ کیا خواب دیکھا. فوراً حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم کا چاہنے والا تھا، حضور غوث اعظم کا مرید تھا. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بس حاضری دیا. حضور غوث اعظم سے ٹھہر، رک، ہائے ہائے رک، تو جو کہنا چاہتا ہے میں پہلے ہی سے جانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو کہنا چاہتا ہے میں پہلے سے جانتا ہوں. تم نے جو خواب میں دیکھا ہے تیری تقدیر میں 100 جو ہے جنا لکھا تھا کہ تو 100 جنا کرتا. میں تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں جو ہے میں تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت سے بچا لیا. سبحان اللہ. یہ اس کی تقدیر میں لکھی تھی کہ 100 جنا کرتا ہو. لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو خواب میں تو نے جو دیکھا ہے میں نے اس چیز کو خواب میں دکھایا اور حقیقت سے تجھے بچا لیا. تو آپ سوچیں جو حضور غوث اعظم وہ گناہ کرنے والا تو اس کو خواب میں دکھا کر اور حقیقت سے بچا رہے ہیں. تو ہم تو عاشق رسول ہیں، غلامان غوث اعظم ہیں، تو ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں. حضور غوث اعظم کی نام لیا کریں، ان سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں. بس آخری بات کہہ کے میں آپ کو گزر جاؤں گا کہ حضور غوث اعظم کی شان عظمت کیا ہے. حضور غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور غوث اعظم جب بچپن میں تھے نا، ماں کی گود سے چھلانگ مارتے سورج میں غائب ہو جاتے. حضور غوث اعظم ماں کی گود میں جب رہتے ایک چھلانگ مارتے سورج میں غائب ہو جاتا، پھر فوراً آ جاتے. یہ بچپن کا کمال کی بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں جو ہے پالی ہوئی ماں حاضر ہوگی. حضور غوث اعظم نے فوراً جو ہے خطبہ کو چھوڑ کر حاضر ہو گئے. کہنے لگے ماں کیا بات ہے. اتنے میں جو حضور غوث اعظم جیسے ہی فرمانا تھا تو وہ پالی ہوئی ماں کہتی ہے بیٹا جو کرامت میں نے بچپن میں دیکھی تھی آج میری خواہش ہے کہ وہ کرامت پھر میں دیکھوں. سبحان اللہ. وہ کرامت میں پھر دیکھوں. تو اتنے میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے میری ماں اس وقت میں چھوٹا تھا، جب ایک چھلانگ مارتا تھا سورج میں غائب ہو جاتا. ابھی 1000 سورج مجھ میں آ جائیں وہ لوگ غائب ہو جائیں گے، میں غائب نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. 1000 سورج، اس لیے کہ بچپن کا وہ کمال تھا. میں تو جوان ہو چکا ہوں، ابھی 1000 سورج مجھ پہ آ جائیں وہ غائب ہو جائیں گے لیکن میں غائب نہیں ہوں گا. ایک جملہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم اے ماں یہ جو پورا سال جو ہے نکلنے سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر دیتا ہے. اللہ. یہ پورا سال محرم جب آتا ہے تو آنے سے پہلے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر دیتا ہے کہ عبد القادر میں نکلنا چاہتا ہوں، پورے سال میں اس طرح جو ہے منظر ہوں گے، ہمیں اجازت دے تاکہ ہم نکلیں. حضور غوث اعظم جب اجازت دیتے ہیں تب وہ مہینہ نکلتا ہے، جب وہ سال نکلتا ہے، تب وہ مہینہ نکلتا ہے، تب وہ ہفتہ نکلتا ہے، تب وہ دن نکلتا ہے. تو آپ سوچیں حضور غوث اعظم کی شان دیکھیں کہ ایک ایک دن جا کر نکلنے سے پہلے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں حضور کہ آپ اجازت دیں تاکہ ہم نکلیں، اور جو جو اس دن میں ہوگا سب خبر حضور غوث اعظم کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. سب خبر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کی شان دیکھیں، آپ قربان جائیں. حضور غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں. بس ایک کرامت میں کہہ کر اپنی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہوں گا. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں. انہی کرامتوں میں سے ایک کرامت مشہور یہ کرامت ہے کہ ایک شخص جو بہت غریب تھا، مالدار نہیں تھا، فاقہ زندگی گزار رہا تھا، حضور غوث اعظم کی نگاہ کرم ہوئی تو حضور غوث اعظم کے صدقے پر وہ مالدار ہو گیا. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے حضور غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر واز کر رہے ہیں اور معراج کا ذکر کر رہے ہیں. معراج شریف کا ذکر کر کے حضور پلک جھپکتے ہی پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پنچے، چھٹے، ستے، سدرۃ المنتہا کے بعد عالم برزخ سے قرب خاص اللہ کا دیدار، اللہ سے ہم کلام،
पलक झपकती गए, पलक झपकती आए। तो हुज़ूर गौसे आज़म के मुरीद में से एक मुरीद था, उसको इस बात को हजम नहीं हुआ। उसके बाद के पलक झपकती गए, पलक झपकती आ गए, तो वो क्या किया, महफिल से उठ गया। क्या किया, महफिल से उठ गया। और महफिल में उठ जाने के बाद वो गया बाजार जाने के बाद मच्छी खरीदा। मच्छी खरीद के बीवी के पास है, बीवी लो मच्छी बनाओ, इसे पकाओ, मैं आकर खाना खाऊंगा। मैं दरियाए दजला में जाता हूँ नहाने के लिए। कहाँ, दरियाए दजला में जाता हूँ नहाने के लिए, फिर मैं आकर खाना खाऊंगा। तो आया, समुंदर के सामने कपड़ा रखा, एक छलांग मारा। कहाँ पे, बगदाद में। उठा कहाँ पे, मिस्र में। सुभान अल्लाह। छलांग मार रहा है कहाँ, बगदाद में, निकल रहा है मुल्क के शाम मिस्र में। अब ये हैरत हो जाता कि या अल्लाह, मैं तो बगदाद में था, एक डुबकी यानी एक छलांग मारा पानी के अंदर बगदाद में, लेकिन निकला मुल्क के शाम यानी मिस्र में। अब ये हैरत हो जाता है। जब वो निकला, मौलिक अपनी किताबों में लिखते हैं उसकी सूरत जो है लड़की हो चुकी थी, उसकी सूरत जो है लड़की हो चुकी थी। अब ये हैरत हो गया कि मैं तो लड़का था, लड़की कैसे हो गया। अब इतने में जो है देखता है कि कुछ लोग गुजरे, तो इस लड़की को जब देखे तो एक जो है इसको जो है मोहब्बत करने लगा, इसकी खूबसूरती को देखकर इसे साथ लेके गया। लेकिन वो सोनार का फनकार था, वो लेकर गया, उससे उसी से शादी किया, उससे 7 औलाद हो गए। कई साल हो गए, किताबों में लिखी हुई है कि 11 साल हो चुके थे, उस लड़की से 7 औलाद हो गए। अब ये हैरत, ये धीरे धीरे में सोचने लगा कि या अल्लाह, मैं तो लड़का था, लड़की भी हो गया। लड़की होने के बाद इस सोनार से मैं नेका भी जो है कर लिया, नेका भी करने के बाद मुझसे 7 औलाद भी हो चुके, 7 औलाद भी हो चुके। अब धीरे धीरे सोचते कि डूबा था मैं बगदाद में, निकला मिस्र में। अब ये सोच है, बोल नहीं पा रहा है, इसलिए कोई यकीन नहीं करेंगे। इधर में एक दिन कहने लगा अपने शौहर को, वो कहने लगी कैसा करो, मैं दरिया में जा रही हूँ नहाने के लिए, आकर जो है फिर आपको मैं खाना देती हूँ। ठीक, आई दरिया के पास, जैसे ही कपड़ा रख कर उसी दरिया यानी मिस्र में छलांग मारी, फिर बगदाद निकल गई। सुभान अल्लाह। अब जब निकला बगदाद में, अब वो औरत नहीं बल्कि लड़का हो गया। वहां निकला था लड़की होकर, शादी किया, 7 औलाद हो चुके। 7 औलाद हो जाने के बाद वो औरत बन चुकी, 7 बच्ची की मां भी बन चुकी। और मुल्क शाम यानी मिस्र में छलांग मारी वो औरत, निकली बगदाद में मर्द होकर। और जैसे ही मर्द होगा, ये हैरत हो गया कि अल्लाह मेरे साथ क्या हो रहा है। फौरन देखता क्या है कि जिस तरह कपड़े रखा था उसी तरह कपड़ा है,